Hello and welcome to Study with Sudhir, and this is going to be an important session because we are going to discuss the strategies in order to prepare for the ICSE Class 10 Biology paper. And with me is Senior Biology Teacher joining me from Hisar in Haryana, Ms. Smita Agrawal. Smita ji, thank you very much for joining us on Study with Sudhir. हमारे से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. Thank you so much, Sudhir sir, to give me this opportunity. Okay, so you are going to give us all the tips on how should students prepare for the bio paper. So the big dilemma for most students, and at least that's what I am hearing in the comments that I get both on our channel as well as on the app, that whether preparing for an MCQ based examination should be very different from the way they prepare or the way their seniors have prepared in the past for a subjective type biology paper. So what would you tell those students? Okay, thank you, sir. Sir, honestly, I don't think that if we are preparing for subjective paper or we are preparing for the objective paper, it makes a big difference. And especially if we are talking with the ICSE biology paper, there is no big difference at all, because when there is a checking of answer script in board, then we are looking for the keywords. So हम हमेशा से ही बच्चों को बोलते हैं ये कीवर्ड्स पढ़ो, ये ऑपरेटिव वर्ड्स पर ध्यान रखो, ये नहीं लिखा तो नहीं मार्क्स मिलेंगे. Like for example, when we are discussing the function of xylem, so students generally writing that xylem is a tissue which helps in conduction of water. But what the council said, the child need to be very specific that xylem is a tissue which helps in conduction of water from root to different parts of the plant. So we are already in this practice. I don't think that nothing is new for the students, that they have to do something in a different way for objective. लेकिन I mean, ये तो आपने बात कही सब्जेक्टिव पेपर में कीवर्ड्स को पर ध्यान देने की जरूरत पड़ती है. बायोलॉजी में भी काफी सारे पेपर्स में आईसीएसई का फॉर्मेट वही रहता है, लेकिन कीवर्ड्स का किस तरह का इंपॉर्टेंस रहेगा जबकि वे ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? थैंक यू सर. फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ कि डिफ्यूजन के ऊपर बेस्ड एक हमें क्वेश्चन मिलता है. तो व्हाट आर द कीवर्ड्स फॉर द डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ solvent and gaseous particles from their higher concentration to their lower concentration when they are in direct contact. Now, when we got the 4 option, वहाँ क्या होगा? Higher to lower की जगह lower to higher एक ऑप्शन में होगा. कहीं ना कहीं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की जगह इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा या कॉन्टैक्ट के बारे में कोई बात ही नहीं होगी. तो जब तक आपने वो की टर्म्स को ध्यान से नहीं याद किया है, नहीं पढ़ा है, तभी मुश्किल होगा. Here what I suggest to students to prepare a notes in such a way that you need to be specific for each and every key terms. तो ये बहुत आसान होने वाला है, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. ओके, तो जहां तक सब्जेक्टिव पेपर का सवाल है, we had, I mean, for previous years we have the previous year question papers, the 10-year papers on which to kind of look at in order to understand the pattern, in order to understand the style, in order to understand कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. लेकिन अभी जहां तक एमसीक्यू का सवाल है, पहली बार काउंसिल आईसीएसई ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर दे रहा है. तो एक तरह से ये हो गया कि नई पिच है, अभी इस पे गेंद टप्पा डालने के बाद स्पिन करेगी या तेज आएगी, इसके बारे में स्टूडेंट्स को कुछ ज्यादा मालूम नहीं है. सो व्हाट वुड यू एज द कोच for the biology team, what would you tell the students? सुधीर सर, बहुत छोटी सी चीज है कि जब हम एक चैप्टर पढ़ाते हैं तो एक चैप्टर की डिमांड होती है. Whether we are asking the question in a subjective format or in an objective format, the demand of the chapter remains same. Okay, so what I suggest here, yes, we have lot of previous years question papers, और अभी यदि हम सैंपल पेपर पर नजर मारते हैं जो अभी काउंसिल ने हमें शेयर किया है, तो उनमें कुछ भी नहीं है. वो सैंपल पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस को इस बार सब्जेक्टिव में पूछने के बजाय ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया गया है. मैं बच्चों को बिल्कुल सजेशन यही दूंगी कि आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है कि मैं ये वाली ऑब्जेक्टिव बुक खरीदूं, मैं ये वाला एमसीक्यू का बुक खरीदूं. आप अपनी ही बुक को, वेदर यू आर फॉलोइंग द सेलिना वन और दैट अनीता प्रसाद वन और एनी सृजन वन, कोई सा भी बुक फॉलो करें, आप एक ही बुक से अपने एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़िए, उनको की पॉइंट्स को नोट करिए
और Yes. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, और स्पेशली जो आपकी बुक के एक्सरसाइज के बैक में क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। यदि वो क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं तो आई डोंट थिंक कि हमें कोई अलग से ऑब्जेक्टिव के लिए कोई प्रिपरेशन करने की रिक्वायरमेंट है। हाँ, यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि कुछ एमसीक्यूज को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो डेफिनेटली स्कूल टीचर्स आर प्रोवाइडिंग टू स्टूडेंट्स, ताकि आपको ये समझ में आए कि मेरा डिस्ट्रक्शन ना हो रहा हो ऑप्शन को देखकर। Yeah. So the common feeling among the students is also that there is, of course, one section of students which is feeling very tense because of the MCQs. There is another section of students which feels, अरे MCQ है, ये तो बहुत easy होगा, तो इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लंबा लंबा लिखने की अभी जरूरत बिल्कुल नहीं है, सिर्फ 4 में से एक को टिक मार्क करना है। Do you think MCQs will make the biology paper in particular tough, or will it make it easy? एक्चुअली इंडिया में प्रॉब्लम है कि व्हेनेवर वी हैव एमसीक्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो हमें लगता है कि वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो हम 4 करेंगे और उसमें से 1 टिक करेंगे, और कोई भोलेनाथ जी होंगे और वो हमारा मतलब उद्धार कर ही देंगे। नाउ तुक्का तो लग ही जाएगा। हाँ, तुक्का तो लग ही जाएगा। इनफैक्ट देयर आर लॉट मेनी पीपल दोस हु आर आई मीन एक्सपर्ट इन टेलिंग दैट कि तुक्का विज्ञान कैसे काम करता है करके। यहाँ कोई तुक्का विज्ञान काम नहीं करने वाला है। और एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव इज नॉट इजी एट ऑल, बिकॉज when you are attempting a subjective paper and when there is a question on any particular definition, on a particular location or a particular function, so that is very crystal clear. Whatever is in your thought, you are writing that one only. Now when I am giving you option, then I am giving you lot many heads, और वहां से शुरू होता है आपका डिस्ट्रक्शन। तो अब यहाँ पर यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको अच्छे से फैक्ट्स मेमोराइज नहीं है, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होने वाला है। इसलिए एमसीक्यू कभी आसान नहीं होता। इनफैक्ट एनीवन हु हैज गिवन द नीट, अगर वो किसी भी सीनियर से बात करें जिन्होंने नीट या जेई वगैरह का एग्जाम दिया है, सो दे विल टेल यू दैट एमसीक्यूज डज नॉट मीन एन इजी पेपर एट ऑल। दूसरी बात स्मिता जी ये है कि जी, हियर आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग। यदि आपने जो नीट वाला बात बोला, I have done NEET paper analysis of 2020. Out of 90 questions, 86 questions were directly from their NCERT book only, and they were the straight liner only. Again, बच्चों मैं आपको यही बात बोलूंगी, आप बहुत सारी बुक्स को मत फॉलो करिए। आपने जो भी बुक पढ़ी है उस बुक को थोरोली पढ़िए, बार बार पढ़िए। और एक स्टोरी है, एक बच्चा होता है कि वो उसका एग्जाम होता है और वो बड़ा घूम रहा फिर रहा होता है, तो जो उनके रिलेटिव्स होते हैं दे आस्क कि कल तुम्हारा एग्जाम है और आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। द चाइल्ड रिप्लाइड कि मुझे 2.5 पेज रिवाइज करना है, और वो मैं कभी भी आधा घंटा 1 घंटा लगा के रिवाइज कर लूंगा। तो यहाँ आपको वो 2.5 पेज वाला स्ट्रेटेजी अपनाना होगा। यू नीड टू मेक योर ओन नोट्स, नॉट रिलाई ऑन एनीवन फॉर एनी काइंड ऑफ द नोट्स। फॉर एग्जाम्पल एक्टिव ट्रांसपोर्ट का हम यदि एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अ मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स और द मिनरल पार्टिकल और द आयन पार्टिकल्स फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन वेयर द एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो इस पूरी डेफिनेशन में देयर आर द 3 कीवर्ड्स। सोल्यूट का मूवमेंट होता है, मूवमेंट थ्रू एनर्जी, एंड मूवमेंट थ्रू लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। आपको अपने डेफिनेशन में, अपने नोट्स में पूरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का डेफिनेशन नहीं लिखना है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का हेडिंग लिखिए, 3 पॉइंट्स लिखिए, जैसे एक बुलेट्स बनाते हैं। लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, एटीपी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड द मूवमेंट ऑफ सोल्यूट। तो आपको वो 3 हेड रिवाइज करने हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट पूछा है, क्या यहाँ पे सोल्यूट का बारे में बात किया है, आयन के बारे में बात किया है, क्या लोअर टू हायर चीज दिया हुआ है, क्या एटीपी या एनर्जी के बारे में बात किया हुआ है। तो जब आप एक एक क्वेश्चन पे इतना एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पर गलती नहीं होने वाला है। बिल्कुल। So the other question, Smita ji, is that between now and the 14th of November, 15th of November से एग्जाम शुरू हुए, तो should the students focus only on the semester 1 syllabus study and revision, or can they also do some chapters of semester 2? Because there are some schools which are also taking examinations which includes some of the semester 2 syllabus as well.
Here I would not suggest at all to go for the semester 2 examination इस टाइम पर, क्योंकि कहीं ना कहीं MCQ बेस्ड पेपर है, आपको बहुत प्रिपरेशन करना है और इसके मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो वहां पर दो नाव पर पैर रखने का कोई सेंस नहीं बनता है। आप सेमेस्टर 1 को ही प्रिपेयर करें, वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अभी आपको सेमेस्टर 2 का करेंगे भी ना, यदि कोई भी एक नया टॉपिक आप शुरू करेंगे तो यू आर नॉट डूइंग इट बाय हार्ट। आपको कहीं ना कहीं प्रेशर है कि मुझे सेमेस्टर 1 का वो चैप्टर भी रिवाइज करना है, उसका MCQ करना है, उसका एक्सरसाइज करना है। तो देयर इज नो सेंस, इतना प्रेशर लेके काम करने की कोई जरूरत नहीं है। एंजॉय करिए बायोलॉजी। बायोलॉजी इज अ सब्जेक्ट जो यदि आप की पॉइंट्स के साथ में याद करते हैं, उसके कुछ याद करने के मिनोमिक्स अपने दिमाग में रखते हैं, तो बहुत आसानी से याद होता है। बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं है। 5 चैप्टर्स आर देयर, तो अपना दो दिन भी आप रोज चैप्टर को डिवाइड करते हैं और देते हैं, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि क्वेश्चन का फ्रेमिंग वहीं से होने वाला है और वहीं से आपको उन्हीं क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि कोई नया क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। कंटेंट तो वही है ना आपके पास। कंटेंट में ना कम ज्यादा हुआ है तो फिर कोई सेंस नहीं बनता कि आप कहीं और जाकर प्रिपेयर करें। Right. My last question, there is no gap for the biology paper. It's of course the last paper for the mains, among the main subjects, and there is no gap. Will that be a problem for the students? I think this is nothing new for biology. Every year, I don't know why council is so, कहते हैं ना, मेहरबान है बायोलॉजी के ऊपर, क्योंकि every time बायो का पेपर लास्ट होता है। In comparison of rest of the papers, बायोलॉजी में कंपैरेटिवली गैप कम होता है। तो अभी वो सिचुएशन ऐसा है, उसके लिए पैनिक होने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वैसे भी जो गैप पीरियड वाला होता है, तो द फर्स्ट डे जिस दिन एग्जाम ओवर होता है, वो दिन तो हम वैसे ही निकाल देते हैं कि अभी कल का टाइम है, हम रिलैक्स करते हैं। देन जितना ज्यादा टाइम होता है उतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बच्चों। आप अभी से अपने चैप्टर्स की तैयारी करिए। वो 2.5 पेज के अपने 3.5 पेज के अपने नोट्स बनाइए, ताकि आपको एक ये याद है कि मुझे ये चीजें रिवाइज करनी है। डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन। जहां से भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, स्कूल से मिल रहे हैं, किसी और प्लेटफॉर्म से मिल रहे हैं, तो क्वेश्चंस की ईमानदारी से प्रैक्टिस करिए। ये नहीं कि आपको आंसर को सर्च करना है। बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि जनरली बच्चे जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं तो वो गूगल बाबा की बड़ी हेल्प लेते हैं कि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किया और वहां से आंसर फाइंड आउट कर दिया। एक क्वेश्चन को यदि आप बुक की एक्सरसाइज में भी यदि क्वेश्चंस को कर रहे हो, यदि कोई क्वेश्चन 4 बार रिपीट हुआ है तो 4 बार उस टॉपिक पर जाइए, उसको दोबारा रीड करिए, क्योंकि उसके रेपिटेशन का मतलब ही वो ये कहता है कि वो क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। तो आप अपनी बुक से ही रिवाइज करिए, उसके लिए कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन को इन एडवांस रखिए, तो वो जो गैप नहीं है वो जल्दी ही टाइम आपका निकल जाएगा। हाँ, एक और चीज आप कर सकते हैं, उससे पहले केमिस्ट्री के पेपर में आपके पास में 1 दिन का गैप है, फिजिक्स के पेपर में 1 दिन का गैप है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के पेपर के ड्यूरेशन में यू कैन गिव 1 आवर फॉर बायोलॉजी, कि एक बार मुझे इतना सारा जो है एक चैप्टर थोड़ा सा मैं बायो का निकाल देता हूँ या निकाल देती हूँ, ताकि हमें थोड़ा सा उस दिन कम प्रेशर फील हो। अदरवाइज यदि आपने थोरो स्टडी की है और अभी तक नहीं भी की है, 1 महीना कोई कम नहीं है, अभी भी बहुत टाइम है। आप खुद से पढ़िए, अपने ऊपर विश्वास रखिए और रोज का काम रोज करिए। जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद से बुक में उनके आंसर्स को ढूंढिए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट 2020 में बायो का पेपर नहीं हुआ था, कैंसिल हो गया था। 2021 में तो ऑफ कोर्स कोई एग्जाम नहीं हुआ, तो काफी अरसे के बाद बायो का पेपर भी होगा। इवन दैट इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। स्मिता जी, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर स्टडी विद सुधीर के साथ। एंड आई एम श्योर, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दे वुड रियली make good use of all the tips, very useful tips that you have given to the students in terms for their biology paper. Thank you very much once again. Thank you, sir. Thank you, and all the best students. Thank you, sir. Thank you.